Good afternoon, everyone. How are you all? Yes, so kids, today we will start on new chapter number 17. Chapter number 17, and what is the name of the chapter? A place to call home. Yes, a place to call home. Means एक ऐसा place जिसे हम क्या बोलते हैं? Home. Okay? So we all live in a home. Yes? Kids, why do we need a home? Why do we need? You all live in a house? So is there any need to live in a house? Why? Stand up. Yes, Tanvi? Because home protects us from animals. Yes. Very good. House protect us from animals and thieves. Okay, and any other one? Why do we live in a house? मैम जब हमारा वेदर खराब हो तो हम उसमें Yes. रह सके. Because house protect us from harsh weather conditions, and house protect us from heat, cold, rain, okay, thieves, animals, इन सब से हमें प्रोटेक्ट करता है. So we live in a house and we feel comfortable in our house. ठीक है, आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ फील करोगे? हाउस में, राइट? उसके अलावा कहीं कंफर्टेबल फील नहीं होता ना? Yes, and the house where we live with our family. एक ऐसा हाउस जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, which is called our home. Okay? हाउस में तो सब लोग रहते हैं, कोई लोग रेंट पे रहते हैं, ठीक है, कोई अपने स्टडी के रिलेटेड बाहर हाउस में ही रहते हैं, बट इट्स नॉट कॉल्ड देयर होम्स. होम्स आर द प्लेस वेयर वी लिव विथ आवर फैमिली. समझ में आया? होम वो प्लेस होता है जहां हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. ओके, अंडरस्टूड? यस. तो दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू होम. ओके, शेल्टर से रिलेटेड है, यू नो ना? शेल्टर इज द अनदर नेम ऑफ होम. शेल्टर. ओके, सो देयर आर सम टॉपिक्स which we have to clear in this chapter. First one is shelter in villages and towns. Shelter in villages and towns. So kids, you all understood types of houses. In your previous classes, you already learned about the types of houses. What are the types of houses? कच्चा हाउस, पक्का हाउस. Yes, we learn about the kacha house and pakka house in our previous classes. And the special houses, temporary houses. Special houses means igloos, stilt house. You already learn about them in your class third. And temporary houses just like tent, houseboat, इन सब के बारे में आपने अपने थर्ड क्लास में ऑलरेडी समझ चुके हो आप लोग, है ना? ओके. एंड ट्रेडिशनल एंड मॉडल बिल्डिंग मटेरियल्स. अब आप इनमें जो समझोगे वो ये है कि टाउन्स में किस टाइप के हाउसेज होते हैं, विलेजेस में किस टाइप के हाउसेज होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडल बिल्डिंग्स, ठीक है, उनमें ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल जो हाउसेज थे उनमें किस टाइप के मटेरियल्स यूज होते थे. अब जो मॉडर्न हाउसेज बन रहे हैं उसमें किस टाइप के बिल्डिंग मटेरियल्स यूज होते हैं, ठीक है. एंड बेसिक नीड ऑफ सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, जो आपकी बेसिक सेफ्टी है, जो प्रोटेक्शन है, उसके बारे में आप इस चैप्टर में समझोगे. एंड बेसिक सेफ्टी प्रैक्टिस फॉर चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल, पर्सन्स एंड डिसेबल्ड. वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है जो हमें करनी है सेव करने के लिए? किसको? चिल्ड्रंस को, बच्चों को, ठीक है, स्पेशल पीपल्स को. ओके, इन सबको सेव करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस हमें करनी है वो सब हम इस चैप्टर में समझेंगे. अंडरस्टूड? ओके, सो फर्स्ट इज, जब आप अपनी बुक ओपन करोगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए. हाउ आर द बिल्डिंग डिफरेंट? हाउ आर दीज बिल्डिंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? नाउ टेल मी. फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ bungalow and second one is of multi-story building. And who will tell me what are the difference?
Anyone different? What is the difference between bungalow and multi-story building? Yes, Deepika and Dora. Ma'am, bungalow is a kacha house and Is bungalow kacha house? No? Yes? Yes, you. मैम बंगलों में जस्ट लाइक बंगलों में हमारा ज़्यादा बड़ा घर होता है और मल्टी बिल्डिंग्स में अलग अलग लोग रहते हैं Sit. और बहुत सारे रूम्स होते हैं. Sit. Listen, beta. Bungalows and multi-story building, both of them found in a cities. But what is the main difference? Main difference is that in a bungalow, it is a individual house. Okay, there are many facilities, just like lawns, gardens, okay, gym, swimming pool, ऐसे and many rooms are there in bungalow. Bungalow बहुत बड़ा होता है. But what is multi-story building? In a one story, there are many floors and each floor have many flats. समझ में आ रहा है? एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं और हर फ्लोर्स पे फ्लैट्स होते हैं और हर फ्लैट एक पर्टिकुलर पर्सन का होता है. समझ में आ गया? लेकिन बंगलो तो जो है वो एक ही पर्सन का होगा और इसके अंदर बहुत सारे रूम्स होंगे. ठीक है, यहाँ स्पेस कम होता है, यहाँ स्पेस ज्यादा होगा. ठीक है, एक ही फैमिली रहती है बंगलो में भी और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अलग अलग फ्लैट्स में अलग अलग फैमिलीज रहती हैं. तो इसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज रह सकती हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में. बट इन अ बंगलो ओनली वन फैमिली लिव. ओके, समझ आया? सो लेट्स वी स्टार्ट आवर चैप्टर. Okay, shelters in villages and towns. Okay, in the picture we had what we seen? This is the picture of? Yes. Who will tell me kacha house is made up of? What are the materials we use to make kacha? Only raise your hand. Yes, Siddharth. मैम wood, mud, Mud. wood, मैम wood, mud, Okay. grass, Grass. bamboo, Bamboo. Very good. Very nice. Sit. So kacha house is made up of mud, straw, leaves, grasses. Okay. And the pakka house is made up of? Only raise your hand. Yes, Vivek. Cement, steel, bricks. Bricks, cement, steel, iron rods. Yes, tiles, glasses, wood. Okay. So now who will tell me? Sit down. Which house is a permanent house and which house is a permanent house? Kacha house or a pakka house? Very nice. Pakka house is a permanent house. And which house need repair time to time? Yes, kacha house need repairing time to time. Okay. Which is a strong? Which one is a strong? Pakka house. Pakka house is a strong house. And which type of houses we found in cities? Pakka house. And which type of houses we found in villages? Yes, so we found kacha houses in villages. Okay, so listen beta, there is a story. Listen carefully. One day, okay, Nitika asked her great-grandmother. Great-grandmother means? Who is great-grandmother? Your father's grandmother. Your father's grandmother is your great-grandmother. Okay, आपके पापा की जो दादी जी है वो आपकी great-grandmother है. Okay, तो Nitika asked to her great-grandmother what kind of grade she lived in when she was young.
ओके, तो उन्होंने पूछा कि जब आप छोटे थे, व्हेन यू वर यंग, तो आप किस टाइप के हाउसेस में रहते थे? Her great grandmother told her that when she was young, most people lived in villages. तो उन्होंने बताया कि जो ज्यादातर लोग थे उस टाइम पे इतने ज्यादा सिटीज नहीं होती थी, उस टाइम पे क्या होते थे? ओनली विलेजेस होते थे. तो हम जब यंग थे तो हम विलेजेस में रहते थे. ओके, एंड बिल्ड कच्चा हाउसेस. और हम क्या बनाते थे? तो कच्चा हाउस बनाने के लिए, ठीक है, कोई मैसन्स, लेबर्स, इनकी नीड नहीं होती थी. जो हाउस में जो लोग रहते थे वो ही उसका हाउस को टाइम टू टाइम बनाते रहते थे. ठीक है. इट डिड नॉट कॉस्ट मच. तो ग्रेट ग्रैंड मदर ने बताया कि इनकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा नहीं होती थी. दे आर वेरी चीप. बहुत सस्ते होते थे इनको बनाना, क्योंकि मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता था. ग्रास, बैम्बो, लीव्स. ओके, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती थी. इट वॉज यूजुअली मेड बाय फैमिली मेंबर्स themselves. तो इस टाइप के हाउसेस को कौन बनाता था? फैमिली मेंबर्स. जो उस हाउस में रह रहे हैं वो ही लोग उसको रिपेयर करते रहते थे और बिल्ड करते रहते थे. काउ डंग मिक्स विद द मड. काउ डंग को किसके साथ मिक्स किया जाता था? मड के साथ. ओके, टू यूज टू मेक द फ्लोर्स. क्या बनाने के लिए? फ्लोर्स. आजकल तो फ्लोर्स पे टाइल्स लगती है, मार्बल्स लगते हैं. ठीक है, बट कच्चा हाउसेस की जो फ्लोर्स थे उसमें काउ डंग को मड के साथ में मिक्स किया जाता था. ठीक है, और जो मिक्सचर बनाया जाता था, ठीक है, उसको वो फ्लोर्स पे लगाते थे. समझ में आया? इट केप्ट द इंसेक्ट अवे. ठीक है, अब ये जो उन्होंने मिक्सचर बना करके फ्लोर्स पर लगाया है, इससे क्या होता था? जो इंसेक्ट्स थे वो उनके हाउस में एंटर नहीं कर पाते थे. काउ डंग और मड का जो मिक्सचर है, ठीक है, इनसे इंसेक्ट हाउस में एंटर नहीं कर पाते थे. तो इसलिए ये मिक्सचर लगाते थे ताकि वो प्रोटेक्ट रहें. किससे? इंसेक्ट बाइट से. ओके, दे यूज मड बिल्ड 4 वॉल्स. ओके, अब जो 4 वॉल्स होती थी हाउस के बनाने के लिए, उसके लिए किसका यूज करते थे? मड का. किसका? ओके, स्ट्रिप्स ऑफ वुड. स्ट्रिप्स ऑफ, ठीक है, वुड, जो लकड़ी की लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स होती थी, उसको वो एक साथ ज्वाइन कर देते थे. ऐसे स्ट्रिप्स लेते थे, ठीक है, और ऐसे ज्वाइन करते थे. समझ में आया? ज्वाइन कर देते थे टू मेक फ्रेम एंड पेग्स ऑन द वॉल्स. इस टाइप का वो फ्रेम बना करके, ये फ्रेम बन गया एक तरीके से, ठीक है, वॉल्स का. और इस वॉल के फ्रेम को इस टाइप का फ्रेम बना करके वॉल्स पर फिक्स कर देते थे. ओके, टू मेक द बेस ऑफ रूफ. ठीक है, इस टाइप का वो बेस बनाते थे जिससे वो वॉल्स, रूफ्स वगैरह ये सब क्या करते थे? इनका बेस होता था. और इसके ऊपर ये मड वगैरह लगाते थे. ठीक है, समझ में आ गया? ग्रासेस लगाते थे. आपको दिख रहा है इस टाइप का हाउसेस? हाँ. नेक्स्ट इज स्ट्रॉ एंड लीव्स ऑफ नीम. ट्रीज लाइक नीम एंड कीकर वर प्लेस्ड ऑन द फ्रेम. ठीक है, अब इस टाइप का, ये तो बेटा अंदर का फ्रेम होता था स्ट्रिप्स लगा करके. अब इस फ्रेम के ऊपर क्या करते थे? जो लीव्स होती है, ग्रासेस होती है, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है ना, इस टाइप से फ्रेम के ऊपर इसको पेस्ट कर देते थे. हाँ जी, और इससे क्या होता था? वो हाउस की रूफ बन जाती थी. साथ ही क्या यूज करते थे ये लोग? गनी बैग. ओके, ब्राउन कलर के जो गनी बैग्स होते हैं जिसमें ग्रेन्स वगैरह आते हैं, हमारे राइस वगैरह आते हैं, वो गनी बैग्स उनको भी प्लेस कर देते थे. ठीक है, किस पर? ऑन द लीव्स के ऊपर उनको भी प्लेस कर देते थे. These building materials were covered with mud to make the roof. अब इन सारे मटेरियल्स को के ऊपर मड लगा करके इस सबको कवर कर देते. क्या बनाने के लिए? रूफ बनाने के लिए. समझ में आया? कच्चा हाउसेज वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. तो दादी माँ ही बता रही है कि जो हम इस टाइप का हाउस बनाते थे,
इसके लिए इन्होंने क्या क्या मटेरियल यूज किया है, काउडंग यूज किया है, मड यूज किया है, ठीक है, नीम और कीकर की लीव्स यूज की है, समझ में आया, वुड स्ट्रिप्स यूज की है, इन सबको उन्होंने यूज किया है कच्चा हाउस बनाने में, ठीक है। साथ में ग्रेट ग्रैंड मदर बता रही है कि बेटा जो कच्चा हाउस जो हमने मेक करते थे, दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी वीक, ओके। पीपल नीड टू कोट द वॉल्स एवरी वीक, हर वीक लोगों को वॉल्स को कोट करना पड़ता था, उसको रिपेयर करते रहना पड़ता था, एवरी वीक ये काम उनको करना पड़ता था। दे ऑल्सो नीडेड रिपेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये हाउस जो है टाइम टू टाइम रिपेयर करना पड़ता था, मतलब मोस्टली एवरी वीक जो विलेजेस के लोग थे जो कच्चे हाउस में रहते थे, उनके कच्चे हाउस को एवरी वीक रिपेयर करते रहना पड़ता है, ठीक है। बट टुडे वी आर लिव इन पक्का हाउसेस, आर पक्का हाउसेस नीड रिपेयरिंग टाइम टू टाइम? नो, जब एक बार बन गया तो फिर 7-8 ईयर्स तक आपको उसको रिपेयर कराने की नीड नहीं होती है। बट आप कलरिंग करा सकते हो, कोई प्लेसेस को रिपेयर, छोटे मोटे प्लेसेस को रिपेयर कर सकते हो, बट ऐसा तो नहीं है ना कि एवरी वॉल, आप हर वॉल को ही आप डेली रिपेयर कर, ऐसा तो नहीं है ना, बट कच्चा हाउसेस में ये जरूरी होता था। नेक्स्ट, तो ये तो ग्रेट ग्रैंड मदर ने बताया, ओके। अब है नितिका की आंट, अब नितिका ने अपने आंट से पूछा, ठीक है, आंट मीन्स यस, एंड आंट मीन्स आपकी चाची भी हो सकती है, आपकी मौसी, आपकी बुआ, ठीक है, ये सब आंट हो सकती है। तो सबने आंट से पूछा, नितिकाज आंट लिव्ड इन वेरी बिग हाउस, नितिका की जो आंट थी वो बहुत ही बिग हाउस में रहती थी, मीन्स बहुत बड़े हाउस में रहती थी, जिसको वो लोग क्या बोलते थे, हवेली, ठीक है। आप लोगों ने देखा है हवेलियां, देखिए हमारे यहाँ के जयपुर के जो मोस्टली पैलेसेस हैं वो क्या हैं, हवेलियां ही हैं, है ना। तो कुछ जो हमारे जो ओल्डन टाइम्स की बनी हुई, एशियन टाइम की जो है हवेलियां वो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सिटीज में भी आपको कुछ हवेलियां देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो जो नितिका की आंट थी वो हवेली में रहती थी। हवेली जनरली बिल्ट विद द मटेरियल्स लाइक, अब ये हवेली जो है, इस टाइप की जो हवेली है, इसमें किस टाइप का मटेरियल्स यूज होता था, लाइमस्टोन में चूना पत्थर का, ओके, वुड, स्टोन चिप्स एंड ब्रिक्स, इस टाइप का मटेरियल्स हवेलीज को बनाने में यूज होता था, समझ में आ गया। मोस्ट हाउसेज हैड रूम्स, और जो ज्यादातर जो हवेलियां थी उसमें बहुत सारे रूम्स होते थे, देयर आर मैनी रूम्स इन द हवेली, ओके ओके। और उसके बेटा सेंटर में क्या होता था, इन रूम्स के सेंटर में होता था एक कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड में बड़ा सारा आंगन होता था, ओके। और उस कोर्टयार्ड के चारों तरफ होते थे रूम्स, समझ में आ गया। सो कोर्टयार्ड मीन्स आंगन, कोर्टयार्ड मीन्स, समझ आ रहा है, सेंटर में कोर्टयार्ड, ओके, और उसके चारों तरफ होते थे हाउसेस, सॉरी रूम्स, समझ में आया। नेक्स्ट, दीज काइंड ऑफ हाउसेस हैड हाई सीलिंग्स, ठीक है, इन हाउसेस की जो सीलिंग्स थी ये कैसे थी, बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा ऊंची होती थी, समझ में आया। ये जो सीलिंग जहाँ पे आपके फैंस लग रहे हैं अभी, दिस इज कॉल्ड सीलिंग, ओके, इसलिए आप इनको बोलते हो सीलिंग फैंस, क्योंकि कहाँ पे लगने होते हैं, सीलिंग्स पे, तो दिस इज कॉल्ड सीलिंग। तो हवेलियों की जो सीलिंग होती थी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हाई होती थी, ऊंची होती थी, एंड वॉल्स आर थिक, और जो दीवारें होती थी, वॉल्स होती थी, बहुत ज्यादा थिक होती थी, किसकी, रूम्स की, समझ में आया। द वॉल्स केप्ट द हाउस कूल, अब वॉल्स इसलिए थिक होती थी हवेलियों की, लाइमस्टोन से बनी होती थी मोस्टली, तो क्या होता था, समर्स में तो हाउस अंदर से कूल रहता था और विंटर में
वार्म रहता था। इसलिए जो आपके एंशियंट टाइम की जो हवेलियां होती थी वो मोस्टली लाइम स्टोन्स की बनती थी और स्टोन्स की बनती थी, ताकि समर्स में वो हाउस का इनसाइड पार्ट जो है वो कूल रहे। ओके, और आउटसाइड कितना भी हॉट हो, लेकिन घर के अंदर हमेशा ठंडा रहता था। ठीक है। द किचन वॉज बिल्ट एट द डिस्टेंस फ्रॉम द अदर रूम्स। ठीक है, अब इन हवेलियों में क्या होता था, किचन जो है वो हाउसेस के पास नहीं होती थी, थोड़े डिस्टेंस पे होती थी। हाउस जो भी रूम्स होते थे ना घर के, उनसे दूर होती थी। समझ में आ गया? अगर रूम्स इस साइड में है, ठीक है, तो किचन साइड में होगी। समझ में आया? अगर लेफ्ट साइड में सारे रूम्स हैं तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही क्या होगी, किचन्स होगी राइट साइड में। क्यों होती थी बेटा ये? ताकि जो किचन से जो भी स्मोक आ रही है, यस, दे आर नॉट एंटरिंग द रूम्स, वो स्मोक जो है वो रूम्स के अंदर ना पहुंचे। ओके, इवन बाथरूम्स वर बिल्ट एट द डिस्टेंस फ्रॉम द रूम्स। ठीक है, जो भी बाथरूम्स होते थे ना और किचन होती थी, सब रूम से डिस्टेंस में ही बनाए जाते थे। ठीक है, बट आजकल जो हमारी मॉडर्न जो हाउसेस होते हैं, आपने देखा होगा कि जो वॉशरूम्स होते हैं मोस्टली रूम्स के अंदर होते हैं, है ना। लेकिन जो हवेलियां होती थी वहां पे जो बाथरूम्स होते थे वो भी रूम से दूर होते थे, डिस्टेंस पे होते थे, और किचन भी थोड़ी सी डिस्टेंस पे ही होती थी। समझ में आया? चलो, ये तो हो गई ओल्डन डेज की बात, जब हवेलियां थी, कच्चा हाउसेस थे। बट टाइम हैव चेंज नाउ। अब टाइम क्या हो गया है? चेंज हो गया है। अब आजकल आपको मॉडर्न हाउसेस मिलते हैं। यस, मोस्ट ऑफ द पीपल इन टाउन्स एंड सिटीज लिव इन पक्का हाउसेस। आजकल लोग कहाँ रहते हैं? एंड यू नो ना, पक्का हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील, आयरन रोड, टाइल्स, वुड, ग्लास, इस टाइप के मटेरियल्स को यूज करके अपना एक हाउस बनाते हैं। ओके, दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक ब्रिक, सीमेंट, टाइल्स, मार्बल्स, आयरन एंड ग्लास। ओके, सो वन डे, अब एक दिन की बात है, नितिका's फादर, नितिका के जो फादर थे वो उसको एक कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके गए। कंस्ट्रक्शन साइट में जहां पर हाउस बन रहा था। ठीक है, तो वो नितिका को दिखाने लेके गए कि ना हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कोई हाउस कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, कैसे बन रहा है वो हाउस, वहाँ किस टाइप के मटेरियल्स यूज होते हैं। तो इस टाइप का कंस्ट्रक्शन दिखाने के लिए फादर नितिका को अपने साथ ले गए। ओके, he explained her how a पक्का हाउस is constructed। उन्होंने बताया कि कैसे एक पक्का हाउस कंस्ट्रक्ट होता है। Understood? So बेटा, he told that walls were made of bricks। पक्का हाउसेस की जो वॉल्स होती है ये किसकी बनी होती है? ब्रिक्स की बनी होती है, और उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है विद द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। सीमेंट, सैंड एंड वाटर का एक मिक्सचर तैयार करके आपने देखा होगा ब्रिक्स के ऊपर लगाया जाता है और उसको कवर किया जाता है सारी साइड से। देखा ना आपको, मैसन लगाता है। द फ्लोर्स इज जनरली मेड ऑफ मार्बल्स और स्टोन्स। और पक्का हाउसेस के जो फ्लोर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? मोस्टली मार्बल्स, स्टोन्स, और आजकल तो टाइल्स भी लगती है। यस, bricks, steel rods and cement are used to constructing the walls and roof। देखो बेटा, आपने देखा होगा कि मोस्टली जो आजकल पक्का हाउसेस होते हैं इन पर आयरन रोड्स को यूज किया जाता है एक बेस देने के लिए, ताकि हाउस अंदर से स्ट्रांग बनेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको कंस्ट्रक्शन साइट का एक बार पिक्चर शो करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। ओके, so kids, this is the picture of construction site. Okay, so what we have seen that there are lots of iron rods
बहुत सारी आयरन रोड्स यूज हो रही है रूफ बनाने के लिए, दिख रही है आप सबको? ये सब आयरन रोड्स है। समझ में आपने देखा होगा मोस्टली आपके नियर बाय जब हाउसेस होते हैं इसमें इस टाइप के रूफ्स को बनाया जाता है, आयरन रोड्स लगाई जाती है। क्यों? वाई? हाउस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। समझ में आया? ओके। वुड एंड ग्लास आर यूज्ड फॉर मेकिंग डोर्स एंड विंडोज। डोर्स और विंडोज बनाने के लिए मोस्टली हाउसेज में वुड का यूज होता है या फिर ग्लासेस का यूज होता है। ओके। पक्का हाउस आर स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट। विच हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग? पक्का हाउसेज। पक्का हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट। दे डोंट नीड रिपेयर टाइम टू टाइम। ओके। दे डू नॉट नीड रिपेयर फ्रिक्वेंटली। हमें जरूरी नहीं कि हमें रोज इनको रिपेयर कराना है। पक्का हाउसेज हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज। विच टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर देयर इन अ मॉडर्न पक्का हाउसेज? किस टाइप की फैसिलिटीज होती है? हाँ, आपका एक मॉड्यूलर किचन होता है ना, बाथरूम्स होते हैं जिसके अंदर शावर्स होते हैं, टैब्स होते हैं और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है और कुछ हाउसेज में स्विमिंग पूल्स होते हैं। तो बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ आपके परमानेंट हाउसेज होते हैं। ओके। सो द किचन, टॉयलेट्स, बाथरूम बिल्ट इनसाइड द हाउस। ठीक है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग जो है उनके जो बाथरूम्स वगैरह है वो उनकी रूम से दूर होते थे, बट आजकल आपको अपने हाउस में अपने रूम्स में ही बाथरूम्स मिल जाएंगे। नियर बाय आपको आपकी किचन मिल जाएंगी, लिविंग एरिया मिल जाएगा जिसमें आप सोफा वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज के कुछ गैजेट्स मिल जाएंगे, कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, इस तरह के गैजेट्स आपके हाउसेज में होते हैं। ठीक है, बहुत सारी मशीन्स होती है जो आपका वर्क इजी कर देती है, लिफ्ट्स होती है। तो आज के परमानेंट हाउस जो हैं वो आप अगर हम एंशिएंट टाइम से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज आजकल हमारे हाउसेज में होती है। ओके। पाइप्स आर पुट इन द किचन एंड टॉयलेट्स टू टेक अवे द वेस्ट। सबके किचन और वॉशरूम में पाइप्स लगे होते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, जो प्रॉपर वाटर है वो ड्रेन हो जाए अच्छे से, आपके हाउस से बाहर चला जाए जो भी वेस्ट वाटर है। देयर इज अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। ओके। And the houses are well ventilated. Ventilated means आपके जो हाउस है उसके अंदर प्रॉपर एयर आने के लिए, हवा आने के लिए, सनलाइट आने के लिए प्रॉपर विंडोज होनी चाहिए। वेंटिलेटेड का मतलब फुल ऑफ विंडोज एंड डोर्स। जिस घर के अंदर फुल ऑफ नंबर्स ऑफ विंडोज होती है, डोर्स होते हैं, वो हाउस बिल्कुल वेल वेंटिलेटेड होता है। समझ में आया? एंड दीज हाउसेज आर मोस्ट एक्सपेंसिव। आज के जो मॉडर्न हाउसेज है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, ओके। सो नाउअडेज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लैंड। बट आजकल क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो हो रही है तो लैंड की शॉर्टेज हो गई है। अब लैंड शॉर्ट हो गया है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, तो लोगों को रहने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए जो सिटीज होती हैं वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होने लग गई हैं। ठीक है, आपके भी मोस्टली रिलेटिव्स कहाँ रहते होंगे? फ्लैट्स में रहते होंगे। हैव यू हियर्ड एनी ऑफ रिलेटिव लिव इन अ फ्लैट? आपके कोई रिलेटिव रहते हैं? यस, आप लोगों के रहते हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ द families live in the flats. Okay, why they live in a flats? Because there is a shortage of land. Population बहुत ज्यादा हो चुकी है लैंड और ऑब्वियसली स्पेस नहीं है, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में लोग रहना प्रिफर करते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी स्टोरी बिल्डिंग? तो देयर इज इन अ लैंड, ओके, एक ही इस लैंड पर बहुत सारे फ्लोर्स बना दिए जाते हैं और हर फ्लोर पर फ्लैट्स होते हैं और ईच एंड एवरी फ्लैट के अंदर 2-3 रूम्स होते हैं, किचन होती है, लिविंग एरिया होता है, बालकनीज होती है। ठीक है, तो एक फैमिली के लिए जितना सफिशिएंट स्पेस है वो आपको फ्लैट के अंदर अवेलेबल हो जाता है। समझ में आया?
So the shortage of space has lead to the construction of multi-story building. Multi-story building का construction इसलिए हुआ है क्योंकि space की shortage होने लग गई है. These buildings are very tall and have many floors. ये buildings बहुत ज़्यादा tall होती है, इसमें बहुत सारे floors होते हैं. Okay, 25, 30, 45 टाइप के यहाँ पे floors होते हैं. And each floor has many houses. और हर फ्लोर से मैंने आपको बताया फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स ही है जो हर ईच एंड एवरी फ्लोर पर होते हैं जहाँ पे फैमिली के साथ रह सकते हैं. एंड दीज हाउसेज आर कॉल्ड फ्लैट और अपार्टमेंट. अंडरस्टूड? ओके. नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट ऑल द टॉपिक्स बंगलो, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड ऑल अदर in our next class. Okay, this is enough for today. You are getting tired now? Yes? Okay, so we will discuss this chapter, continue tomorrow. Okay, so read this chapter carefully. I will ask the questions to you. Okay.